ओके सो कल हम लोगों ने वी हैव सीन रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। एक क्विक रिवीजन लेना जरूरी है, जस्ट अ वेरी क्विक रिवीजन वेयर आई हैव टू मेंशन फॉर्मूला। तो बेसिकली हमारे पास एक कर्व सरफेस था, राइट? सिंगल कर्व सरफेस है, लेंस नहीं है। देन दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका डिस्टेंस फ्रॉम पोल या फिर फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सिस्टम वाज u। इसका इमेज बनता है somewhere over here, and this image distance is v, right? Radius of curvature जो है वो r था of the curved surface. The relation between mu2, mu1, u, v and r is given by mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r. This was the relation between refractive index of medium 1, medium 2, object distance, image distance and radius of curvature, right? So this formula we will need to derive Lensmaker equation. So today what we want to do is to derive Lensmaker equation. तो आज हमको देखना है what is Lensmaker equation. Lensmaker's equation, and I have given you a rough introduction about this. Lensmaker's equation मतलब क्या, उसका significance क्या है, I have told you already. तो the idea is very simple. The idea is कि जो लेंस बनाता है उसको एक इक्वेशन पता होना चाहिए, and that equation should relate focal length, refractive index and radius of curvature of both the curved surface. Because in lens, when you talk about lens, you have two surfaces. So let me draw a lens first. So let us say we have a lens here. This is a lens. Even though it doesn't appear a lens, but मानना पड़ेगा आपको. So even though it doesn't appear as a lens, you have to assume that this is a lens. ये एक lens है, ऐसा मान लो. Okay. Then in this derivation जो हमको derive करना है, हम assume करेंगे कि ये जो lens है, it is made up of two surfaces. This lens is made up of two surfaces. तो मैं एक line draw कर रहा हूँ which basically divides two surfaces. तो we have surface 1 over here. This is surface 1 and this is surface 2, right? Then principal axis of the lens is this. ये axis, ये principal axis हो गया लेंस का. And as I told you, the idea is very simple. More or less जो last derivation किया था वही है. more or less हमारे पास एक object है and that object is kept over here. The distance of object from optical center, ये जो point ले रहा हूँ मैं, point P, this is called as optical center. जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में पोल बोला था, and that is called as optical center. This P is called as optical center. The distance of object to pole is u, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. Then somewhere over here
सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2 एंड लेट अस से समवेयर ओवर हियर पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेट अस से C1 मान लेते हैं। थोड़ा उसको और आगे शिफ्ट करता हूँ, समवेयर ओवर हियर लेट अस से C1, राइट। ओके, देन जो भी रे ऑब्जेक्ट से इन द डायरेक्शन ऑफ OP, ये ऑब्जेक्ट है, OP के डायरेक्शन में जो भी रे ऑफ लाइट जाएगा इट गोज स्ट्रेट, इट डजंट बेंड, इट गोज स्ट्रेट। ओके, राइट। देन the ray of light, let us say this ray OA, I will call this point here A, ये पहली सरफेस पे जब आएगा the ray of light when it reaches on the surface 1 it refracts, मतलब it bends in this particular direction, let us say ये bend होगा, just a minute, या ये bend हो गया यहाँ पे। ओके, अगर दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये सीधा जाता और it would have meet somewhere at point I dash. Okay, the distance of this point I dash from optic center is B dash, and let me call this point over here as point B. देखो ये पहला पार्ट में रे ऑफ लाइट OA सरफेस 1 से रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब बेंड हुआ, और सरफेस 2 नहीं होता तो वो स्ट्रेट जाता इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन। सो बेंड होने के बाद इट वुड हैव बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रीन लाइन एंड इट वुड हैव मेड एन इमेज I dash, राइट। बट वहां पर दूसरा सरफेस है, तो सेकेंड सरफेस के लिए I dash जो है इट विल बी अ ऑब्जेक्ट, इट विल बी अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेसिकली, राइट। एंड वी कैन से दैट, और वी कैन से दैट बिकॉज देयर इज सेकेंड सरफेस तो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होगा। पहली बार A पे रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी बार B पे रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि सेकेंड सरफेस है तो B पे रिफ्रैक्शन होगा। ओके, एंड फाइनली द इमेज is formed at point I on the principal axis. The distance of this point from optical center is nothing but, you can say, V, right? Good. इतना हमको पता होना बहुत required था। Then I need to say that this is refractive index of medium 2, sorry this is medium 1। medium 1 क्यों बोल रहा हूँ, लेंस है, लेंस के दोनों साइड में क्या है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, मतलब बेसिकली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, और लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ओके, इतना पता होना कंपलसरी है। नाउ वंस यू नो दिस, फॉर सरफेस 1 याद रखना, हमने स्टार्ट करते टाइम ही बोला है कि हम अज्यूम कर रहे हैं लेंस के दो सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, और जब सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन हुआ तो हमने बोला मान लो कि सेकेंड सरफेस नहीं है, सेकेंड सरफेस नहीं है तो कहाँ पे बनेगा इमेज, एट I dash, राइट। गुड, तो what we can do is for first refraction, मतलब जब सरफेस 2 नहीं था ऐसा हमने अज्यूम किया है, उस केस में हम लोग
वो फॉर्मूला इसलिए मैंने बताया था आपको, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, राइट। बाय द वे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये डिस्टेंसेस भी स्पेसिफाई कर ही देता हूं। एक ये डिस्टेंस, दूसरा ये डिस्टेंस। तो this distance is radius of curvature r2, this distance is radius of curvature r1. Okay, good. So as I was telling you, this formula is important. So for first refraction mu2, क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है तब हमने क्या बोला था, ये सेकेंड मीडियम का mu2 है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u, ये इमेज डिस्टेंस था यहाँ तक v, तो μ2 बाई v, क्योंकि इमेज वाज फॉर्म्ड इन मीडियम 2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। तो इमेज कहाँ बन रहा है, डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बन रहा है, डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इफ आई अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, मतलब वो ए पॉइंट से पहली बार रिफ्रैक्ट हुआ, if I apply that I will get mu2 by v dash, right? क्यों mu2 by v dash? क्योंकि पहले रिफ्रैक्शन के टाइम हमने अज्यूम किया कि सेकंड सरफेस है ही नहीं। अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो पूरा का पूरा ये जो मीडियम हो गया जहां पे आई डैश बना, वर्चुअल इमेज बना, दैट इज मीडियम 2, इसलिए mu2 by v dash, करेक्ट, अपॉन v dash, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इमेज का, v dash, माइनस μ1 बाई यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपने, मीडियम 1 में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। r1 क्यों? क्योंकि पहला सरफेस ऐसा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, तो ये r1 है, इसलिए गुड, राइट। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो देन बाय r1। Then for second refraction, second refraction कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट बी पे हो रहा है, राइट। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन वी कैन राइट डाउन μ1 बाई वी। क्यों μ1? हाँ, क्योंकि आइडियली इमेज बना कहाँ पे, इमेज तो फाइनली एयर में ही बना ना, क्योंकि सेकेंड सरफेस तो है, हमने अज्यूम किया था कि सेकेंड सरफेस मिसिंग है। तो हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस ये इंपॉर्टेंट है फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, समझ लेना, μ2 अपॉन v डैश। देखो फॉर्मूला, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको हमेशा लिख देता हूँ फॉर्मूला को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर image is formed upon image distance minus refractive index of object of O, मतलब object, upon object distance equal to refractive index of where image is formed। शॉर्टकट लिखना पड़ेगा मुझे, I'll just make some shortcuts, मैं रिपीट करूंगा फॉर्मूला। अगर मैं इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स में कंसंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। μ2 क्या था, μ2 था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स where image is formed of the medium where image is formed upon image distance। ये क्या था, माइनस जस्ट अ मिनट, माइनस refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to refractive index of medium where image is formed
minus refractive index where object is kept upon radius of curvature. अगर आप ऐसा इस फॉर्मूले को देखते, क्योंकि आई नो दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, क्यों mu1 लिख रहे हैं, क्यों v' लिख रहे हैं, ये दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड. फॉर सरफेस 2 की बात कर रहा हूं मैं. याद रखो सरफेस 2 सेकंड सरफेस के लिए क्या हुआ, फाइनली इमेज यहां बना था और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट था i', उसका डिस्टेंस था v', इमेज बना था i पे, डिस्टेंस था v. तो वी कैन अप्लाई दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. इमेज कहां बना, फाइनली कहां बना, एयर में बना, mu1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, यस, ओके, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट. ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, वो कहां था, i' कहां था, मीडियम 2 में. मैंने इसलिए बताया कि हमने अज्यूम किया था कि यहाँ पे अगर सेकंड सरफेस नहीं है तो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट, मतलब i' वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ. फॉर सरफेस 2 इट इज इन मीडियम 2, इसलिए mu2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v', करेक्ट, राइट, गुड, इक्वल टू mu1 minus mu2 upon what, upon radius of curvature of the second surface. Second surface का radius of curvature r2 है, correct, good. If you have understood this much, तो अब what you can do is, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो what you can do is just add these two equations. Okay, we don't need this, we don't need this. Then आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, करेक्ट. इफ यू ऐड इक्वेशन 1 and 2, so 1 plus 2, you will get mu2 by v dash minus mu1 by u plus mu1 by v minus mu2 by v dash equal to mu2 minus mu1 by r1, राइट, और ये r2 था, गुड, प्लस mu1 minus mu2 by r2. जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करो, राइट, एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई. तो ये आपके पास mu1 कॉमन आ जाएगा, 1 by v minus 1 by u बचेगा, इज इक्वल टू, you have to simplify this. तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैं इस प्लस को ले देता हूँ माइनस, इसको mu2 माइनस mu1 कर देता हूँ. तो आई कैन टेक आउट mu2 माइनस mu1 कांस्टेंट कॉमन आउटसाइड, 1 by r1 minus 1 by r2, राइट, ओके, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. मैं वापस रिपीट करने वाला हूँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो. देन और एक चीज आपको मैंने बताई थी, बाय द वे, इफ u is infinity, मतलब if object is kept at infinity, v is equal to f because image is always formed at the focal point. Okay, right. So what you can do is, in that case, what I will do now is, पहले इतना repeat करवा देता हूँ so that next steps will not jumble, क्योंकि थोड़ा सा it's not really complicated, you just need to have concentration. Okay, थोड़ा इतना repeat कर लेते हैं, then I will take you to next step. Okay. So starting from scratch, I will just not go and draw diagram again. Diagram जो है वो ही रखेंगे. R1 and R1 and R2 over here. Yes. तो स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट हमने बोला था
पहला सरफेस, ये पहला सरफेस है, राइट, गुड। पहले सरफेस के लिए ए पॉइंट, ओ पॉइंट, पहले सरफेस का इमेज कहाँ बना, μ2 में, आई डैश पे, डिस्टेंस क्या था, v डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, u, राइट, दिस इज व्हाट वी नो, राइट। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फॉर्मूला याद रखो हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड मतलब μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट मतलब μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस, क्योंकि हम बात ही पहली सरफेस की कर रहे हैं तो फिर पहली सरफेस की बात होगी, r1 आएगा, राइट। हमने पहली बार वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया फर्स्ट टाइम। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सेकंड सरफेस, तो मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सरफेस नाउ। So we already have obtained equation number 1. Second surface is something like this. सेकेंड सरफेस के लिए क्या है कि ये जो आई डैश है, दिस एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये रियल नहीं है इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका डिस्टेंस कितना है, वी डैश। फाइनली इमेज कहाँ बनेगा, आई पे। इसका डिस्टेंस कितना है, वी, क्योंकि फाइनल इमेज है ये, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2, करेक्ट। तो हमेशा याद रखना, इमेज refractive index of the medium where image is formed, image कहाँ बना फाइनली, आई पे, बराबर, मतलब फाइनली एयर में, μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट। पर ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था ना, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस 1 के अंदर, सरफेस 1 के अंदर जो मीडियम था वहां बना, मतलब μ2, तो μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। अभी जब सेकंड सरफेस की बात करो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेकंड सरफेस का ही होगा, दिस इज क्वाइट लॉजिकल, बहुत लॉजिकल चीज है ये। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ बिकॉज एक बार मैंने बताया, तो यू शुड बी एबल टू डू इट योरसेल्फ विदाउट रेफरिंग टू एनी नोट्स, एनी बुक और एनीथिंग। दिस इज हाउ यू रिमेंबर, एंड आई चैलेंज यू कि ऐसा एक बार याद रख दिया तो 2 साल तक कोई, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट समझ लो। प्रोवाइडेड रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था, वी हैव एडेड 1 and 2, राइट। अब ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो μ2 बाय वी डैश माइनस μ1 बाय यू प्लस μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय वी डैश इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये और ये टर्म कैंसल आउट हो गया, मेरे पास बचा μ1 कॉमन निकाल लिया मैंने, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाय r2, राइट। μ1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन 1 बाय r1 minus 1 by r2. So this was the step until which we have solved. अब ये जो μ1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, ध्यान देना, उसको मैं सिर्फ क्या करने वाला हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे μ1 था, आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट टू दिस साइड, तो μ2 माइनस μ1 बाय μ1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, तो ये मुझे मिलेगा 1 by v minus 1 by u equal to μ2 by μ1 minus μ1 by μ1 is 1,
1 by r1 minus 1 by r2, right? ओके, सो यहाँ तक हो गया. बाय द वे ये हमको पता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. ओके, so you can use n also for refractive index. Doesn't matter if you're using n or mu. I already told you refractive index को आप n से या फिर mu से denote कर सकते हो. Okay, then what we know is if object distance is infinity, image is always formed at focal point. मतलब image distance is focal length. तो 1 by v की जगह पे f डाल देंगे और 1 by infinity तो जीरो ही होगा, है ना. 1 upon u that is 1 by infinity that is 0, तो मैं नहीं लिखने वाला उसको. तो मुझे मिल गया 1 by f is equal to mu 2 by mu 1 minus 1, 1 by r1 minus r2. This is nothing but lens maker's equation. Simple, simple, very simple. By the way, अगर लेंस को आपने एयर में रखा है, if lens is kept in air, then mu1 is equal to 1. Therefore 1 by f is equal to mu 2 minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. Correct? Right? Good. By the way, इस इक्वेशन को मैं अगर 1 बोलता हूँ और इसको अगर मैं 2 बोलता हूँ और मैं अगर 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ, तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम ही होगा. मतलब 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. This is called as Lenz formula. देखो, this is equation 2 is Lenz maker equation and this equation 3 is Lenz formula. याद रखो, जैसे हमको मिरर इक्वेशन मिला था, मिरर इक्वेशन क्या था, 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u. That was mirror equation. यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह माइनस साइन डाल दोगे तो मिल जाएगा लेंस फॉर्मूला, नॉट लेंस इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला. तो इफ यू रिप्लेस पॉजिटिव साइन फ्रॉम मिरर इक्वेशन एंड इफ यू रिप्लेस इट बाय नेगेटिव साइन, लेंस फॉर्मूला बन गया. राइट? करेक्ट. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर इक्वेशंस नाउ. तो जब भी आप रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, स्पेसिफिकली JEE नीट, यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया कि टाइम पास हमको नहीं करना, मेमोरी आपका स्मार्टली यूज करो. 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u, मिरर इक्वेशन, प्लस किया पे माइनस लेंस फॉर्मूला, नॉट लेंस मेकर इक्वेशन. लेंस मेकर इक्वेशन इक्वेशन 2 है. करेक्ट. फिर याद कैसे रखते हैं? याद से रखते हैं, लेंस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू मिरर इक्वेशन, ऐसा याद रखते हैं. लेंस फॉर्मूला इज इक्विवेलेंट टू मिरर इक्वेशन, ऐसा याद रखते हैं उसको. राइट? गुड. तो व्हाट वी विल डू नाउ इज, हमने अब जितना कुछ किया है उसको लिखते भी जाएंगे और एक बार हम लोग समझते भी जाएंगे. तो you will have a strong base of what we are doing here. If required, मैं ये डायग्राम्स भी ड्रॉ कर दूंगा वापस से एक बार. I don't want this. चलो ठीक है, कोई नहीं. Yeah, good enough. So, as I have told you, we always start with describing the system, or if required, we start with giving a short introduction about what we want to do. Right? Okay. Then I will directly go and start with describing the system. Consider a thin glass lens
of refractive index mu2. Consider a thin glass lens of refractive index. तो जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू2 लिया है, तो दैट आई विल राइट डाउन लेटर. म्यू2 लिख देंगे वहां पे, राइट. हैविंग centers of curvature C1 and C2 respectively. Okay, then of course C1 and C2 with radii of curvature, दोनों का रेडियस भी होगा, with radii of curvature R1 and R2 respectively, as shown in figure. Okay, then let mu1 be the refractive index of the surrounding medium. Be the refractive index of the surrounding medium where object is kept. ठीक है? When an object or a point object, better to say, क्योंकि स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है. When a point object O is kept on principal axis या फिर just axis, on axis at a distance u, from the lens, the ray OP from the lens, the ray OP passes through optical center without deviation. मैंने आपको बताया कि ये जो रे है OP, ये विदाउट डेविएशन जाएगा. क्यों? मैंने कल भी बताया था, मैं आज बता रहा हूँ. Look at OP ray, and what I am saying is this, ये जो रे है ये OP रे, because you have a point P over here. Okay, ये जो OP रे है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है that is 0. If angle of incidence 0, angle of refraction is also 0. So that is what you need to know. Okay, all right. So this ray OP passes without deviation. That is what you are supposed to know. Then other ray OA, diagram में है OA, other ray OA is refracted along AB, है ना, along AB due to first surface, ये important है, due to first surface, and would have reached, अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पहुंचता, आई डैश पे, एंड वुड हैव रीच्ड point, at point I dash. Okay, if, of course, if second surface was absent, second surface did not exist, right? Good. But due to second surface, the ray undergoes another refraction at
point B and reaches at point I. क्लियर कट, यहां तक आपको समझना है, बहुत इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बोल देंगे कि पहले रिफ्रैक्शन की वजह से क्या फॉर्मूला बनेगा। सो राइट, सो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, for first refraction, object distance is u, the image distance is v dash, and the image distance is v dash. Therefore, using formula for refraction at single curved surface, we get. So if we use that formula for refraction at single curved surface, what we get is, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, mu2 by, हमेशा याद रखना, repeat after me even though I'm not able to listen to you. Refractive index of medium where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 upon radius of curvature of first surface. राइट हैंड साइड बहुत सिंपल है, इसको उठाना दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना अपॉन, ये सब क्यों हुआ, पहली सरफेस की वजह से हुआ ना, तो R1 लिखेंगे, लॉजिकल, क्वाइट लॉजिकल। ओके, इक्वेशन नंबर 1। for second surface, object distance is v dash, since I dash acts as virtual object, right, and image distance is v. Therefore, refractive index of the medium where image is formed, image is finally formed in medium 1 again, matlab in air, upon image distance minus refractive index of virtual object I dash, that is mu2, upon object distance, that was v dash, equal to mu1 minus mu2 by r2, क्योंकि सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, राइट। एडिंग इक्वेशंस 1 y 2, 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा mu2 by v dash minus mu1 by u plus mu1 by v minus mu2 by v dash equal to mu2 minus mu1 by r1 plus mu1 minus mu2 by r2. I am not leaving even a single step क्योंकि I want you to understand every step properly. तो mu2 by v dash कैंसल हो गया, तो मुझे मिलेगा
if I take out mu1 common, 1 by v minus 1 by u equal to mu2 minus mu1 upon r1, माइनस साइन कॉमन निकाल ली तो mu2 माइनस mu1 अपॉन r2, mu1 1 by v minus 1 by u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 कॉमन निकाल लिया तो 1 by r1 minus 1 by r2, right? Then I will just take this mu1 on the right hand side and divide. So mu2 by mu1 minus 1, क्योंकि mu1 by mu1 is 1, 1 by r1 minus 1 by r2. Let us call this as equation number 3. Okay, now we know that, हमारा बेसिक नॉलेज क्या होता था रे ऑप्टिक्स का? We know that if object is at infinity, then image is formed at focal point. मैं ये इंग्लिश में लिख सकता था, but I want you to keep it as precise as possible, simple, compact, good. So you just have to write this way. Therefore, you will have 1 by f, क्योंकि 1 upon v, v is f, minus 1 upon infinity, that becomes 0, right? बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, क्योंकि बुक्स में ऐसा लिखा नहीं होता ना, बुक्स में सीधा डायरेक्ट लिख दिया, तो फिर अरे 1 by v अपॉन माइनस 1 by u की जगह पे 1 by f कैसे आया? Because we are substituting, the values. You have to understand this. Okay, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, doesn't matter. और ये गलत था, गलत in the sense I should give brackets, otherwise that means something else, right? Therefore, finally we have finalmente we have this thing, equation number 4, and this equation number 4 is nothing but Lenz-Maker's equation. तो हमारे पास equation number 4 is Lenz-Maker's equation, right? That is very important, very, very important. अब from 3 and 4, from equation number 3 and 4, we have 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, equation number 5. Equation 5 is called as Lenz formula. Okay, then from equation 4, equation 4 में मतलब डायग्राम बता देता हूँ, अगर mu1 एयर हुआ, इफ द लेंस इज केप्ट इन एयर, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है ना, मैं चश्मा पहन के बैठा हूँ, एयर में ही है ना लेंस, और क्या मैंने यहाँ पे पानी भरा है और बाद में मेरे आंखों में जा रहा है, तो नॉर्मली वी कीप लेंस इन एयर नॉर्मली. तो दिस इज अगेन अ रीजनेबल वे टू रिमेम्बर थिंग्स. फिर इफ मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, if mu1 is equal to 1, that is lens is kept in air. Only for this particular case, मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, बट जब हम JEE नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस केस में कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है. वो बोल देते हैं, मान लो कि हमने लेंस को ऑयल में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.7 है, ऐसा भी होता है। ओके, तो मैं सिर्फ एक सिंप्लीफाइड केस ले रहा हूं यहाँ पे। इफ mu1 is 1, that is length is kept in air, then equation 4 gives us 1 by f equal to just mu2 minus 1, क्योंकि mu1 तो 1 हो गया, 1 by r1 minus 1 by r2. Normally what I prefer doing is, मैं normally what I do is, याद रखने के लिए मैं इसको ऐसा लिखता ही नहीं हूँ। I prefer this way of writing, refractive index of medium 2 with respect to 1. मतलब हमेशा याद रहता है कि यहाँ पे मीडियम 1 जो है, अगर वो एयर हुआ तो आई विल जस्ट यहाँ से हटा दूंगा, तो डायरेक्ट mu2 minus 1 आ गया। ये देखो, ये सेम आ गया आपका, राइट। तो दिस इज व्हाट आई डू, मैं ऐसा लिखता हूँ, क्योंकि ये नोटेशन हमको पता है, mu2 by mu1 का नोटेशन ही है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। ओके, तो नॉर्मली दिस इज व्हाट आई डू, क्योंकि इट मेक्स मी रिमेम्बर कि अरे अगर एयर में रखा है तो 1 हटा दो, नहीं तो फिर 1 को रखो वहां पे। तो it is up to you how you want to do it. My way of doing is this, right? Done. Once again a very quick revision. हमारे पास एक लेंस था, लेंस को हमने एयर में रखा है, लेंस के दो सरफेस होते हैं तो दो सेंटर्स होंगे, एक कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, उसका रेडियस R1, दूसरे कर्व सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, रेडियस R2। अब ये जो लेंस है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दैट इज u फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर मतलब जो रे OP है, इट इज गोइंग स्ट्रेट, स्ट्रेट इन द सेंस इट इज गोइंग नॉर्मल टू द सरफेस 1, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो स्ट्रेट जाएगा। लेकिन रे OA इट विल रिफ्रैक्ट एंड इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ AB। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता तो A से जो रे रिफ्रैक्ट हुआ है वो सीधा I' पे जाता, इमेज बनता, राइट। तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इज refraction at first surface, so I am talking about this equation over here, right? Good. But second surface है, तो ये जो I' है that acts as virtual object for second surface, but virtual object तो virtual है, तो it is inside the glass material, और glass material का refractive index है mu2। तो second refraction के लिए we have this equation, right? फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, फाइनली मुझे मिला इक्वेशन नंबर 3। फिर हमको पता है बेसिक्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमेशा फोकल पॉइंट पे बनता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो डूइंग दैट व्हाट वी ऑब्टेन इज इक्वेशन नंबर 4, एंड इक्वेशन नंबर 4 is nothing but lens maker's equation, right? Okay, then अगर हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर किया तो we get 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. This is called as lens formula. जैसे मिरर इक्वेशन था वैसे लेंस फॉर्मूला है। मिरर इक्वेशन में 1 by v plus 1 by u था। जैसे हमने मिरर इक्वेशन यूज करते टाइम साइन कन्वेंशन बाद में सब्स्टिट्यूट किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। आपको याद होगा मैंने बोला था, जिस क्वांटिटी को फाइंड करना है उसको पहले आइसोलेट करो, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लाओ। जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड में है मतलब उसको फाइंड नहीं करना, वो दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किए थे। तो सिमिलरली यहाँ पे करना इक्वेशन नंबर 5 के लिए, इन जनरल, नॉट ओनली इक्वेशन 5 के लिए, इक्वेशन 4 लेंस मेकर इक्वेशन के लिए भी वैसा ही करना है हम लोगों ने।
गुड, राइट। अगर लेंस एयर में रखा है तो म्यू1 की वैल्यू 1 होगी। अगर म्यू1 की वैल्यू 1 होगी तो इक्वेशन 4 में सिर्फ जो राइट हैंड साइड है μ2/μ1 वो सिर्फ μ2 हो जाएगा, μ2 - 1 हो जाएगा वो। तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दैट्स इट, सिंपल था, राइट। गुड, सो वी विल स्टॉप हियर and I want you to revise these two topics, refraction at single curved surface and Lensmaker equation, before we take next session, that is tomorrow, क्योंकि ये important है। And we are, if possible, I am going to take numericals immediately on this, if possible।